हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक। आज हम जो करने वाले एक्सरसाइज 4.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to लेके क्वेश्चन नंबर 10 maybe till 11 we'll be finishing up, and all of them are very important. This exercise is the most important exercise of this chapter. You will be either having a 4 marker or 6 marker in the exam, so listen very carefully. And properties generally children think are very difficult. They are not at all difficult, not even the questions are difficult. You need to follow three key points. I'll be telling what are the three key points you need to follow. If you follow those three key points, question is done like this. Okay, so let's start. We'll start the question. Along with the question only we'll be learning the points I'll be telling you. Okay, and make a note of all that. Okay, first let us see question number 6. It is, I think so. No, question number 8. From 8 we'll be doing till 8 to 10. Question number 8, it is given that prove that 1 1 1 a b c a square b square c square equals to a minus b, b minus c, and c minus a. This we need to prove. Every time to see the factors move in a cyclic manner. A minus b, then b minus c, then c minus a. Always factors will move in a cyclic manner. The first thing you always, every time whenever you will see it will be there. Okay, now coming to the key point. First key point, make a note of it. Okay, before starting the applying the property, you need to always keep फैक्टर्स इन द माइंड. हमेशा क्या चाहिए ये याद रहना चाहिए. फर्स्ट थिंग, ठीक है. अब क्वेश्चन में ऑलवेज इट इज रिटन दैट यूजिंग प्रॉपर्टीज विदाउट एक्सपैंडिंग, ये लिखा होता है हमेशा. प्रॉपर्टीज यूज करेंगे विदाउट एक्सपैंडिंग, यू नीड टू प्रूव इट. विदाउट एक्सपैंडिंग मीन्स दैट कि एकदम स्टार्टिंग में आप एक्सपैंड नहीं करके सीधा प्रूव कर देंगे. ओके, दैट इज व्हाट इट मेंट. बट एक्सपेंशन तो अल्टीमेटली करनी ही पड़ेगी, बट आफ्टर अप्लाइंग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ओवर देयर. जितनी रिक्वायर्ड है उतनी अप्लाई करने के बाद. ओके, सो अब पहला पॉइंट क्या बोला? कीपिंग बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, स्टार्ट करने से पहले ही कीप इन अ माइंड व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर. ओके, अब उसके बाद सेकेंड, अगर आपको किसी रो या कॉलम, ये कॉलम है, किसी रो या कॉलम में 1 1 1 दे दिया, आई से half work is done for you already. It is already done in the question and given to you. Only half is left. You have to just do a little bit more and the question is solved. Okay, so first I'm writing the key points here. आप सबके सब नोट करेंगे ये की पॉइंट्स. दीज आर इंपॉर्टेंट इन योर अप्लाइंग, मतलब यूजिंग प्रॉपर्टीज इन प्रूविंग द क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट वन इज कीप इन अ माइंड ऑलवेज, क्योंकि क्या चाहिए ये देखना है आपको. जब भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे फैक्टर आते जाना चाहिए साथ साथ. ओके, सो कीप इन अ माइंड फैक्टर्स बिफोर applying properties. Always, ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट की पॉइंट. अब और 1 1 1 गिवन है, योर हाफ वर्क इज ऑलरेडी डन, अदरवाइज वी गेट 1 1. ओके, हमारा काम ही होता है गेट 1 1. तो सेकेंड वन, इफ इट इज गिवन गुड एनफ, फिर तो हो गया आपका. नहीं तो गेट 1 1, गेट 1 1 1 in any row or column. Getting 1 1 1 in any row or column is very important. Okay, अब ये given है तो हमारे लिए done. Now keeping factors in our mind, हमें क्या factor चाहिए? a minus b, b minus c, c minus a. We apply the operations, हम property apply करेंगे such that we get a minus b, b minus c, c minus a. But again, एक और important point, always never apply 3 properties, 3 cyclic or the simultaneous or the equal type of properties at once, because then you'll get 0 0 0 in any single row or column. and अगर किसी भी रो या कॉलम में 3 zeros आ जाती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0. तो फिर प्रूविंग क्या करेंगे? वो तो 0 हो गई. तो हम कभी भी 3 प्रॉपर्टीज एक साथ जो साइक्लिक हैं वो अप्लाई नहीं करते. साइक्लिक वन, ठीक है. अब यहाँ अगर मुझे ये चाहिए, मैं इस वन को एज इट इज रखती हूँ, और ये अब यहाँ पे ये 1 1 1 गिवन था. नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो 2 पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट इज
get or make this, it means make 1 1 1 2, either 1 0 0 या फिर get 2 zeros 1 0 0 or 0 1 0 or 0 0 1. That means I want 2 zeros and 1 1 only. 2 0, थर्ड जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा ना, वही बता रही हूँ. तो मेक दिस, हम 1 1 1 को ये करेंगे. अब हम फैक्टर भी ध्यान में दे रहे हैं और ये भी लेकर आ रहे हैं. आई वॉन्ट ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, कोई भी दो ले आते हैं फैक्टर. हम फर्स्ट को अगर एज इट इज रखते हैं तो ये माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा ना. तो यानी हम राइटिंग ध्यान से देखेंगे, R2 एज R2 माइनस R3. सिमिलरली साइकिल में चल रहा है बोला है, तो अगर R3 माइनस R1 करूँगी तो C माइनस ए हो जाएगा, वो भी ये रहा. मैंने A माइनस बी नहीं किया, R1 माइनस R2 नहीं किया, इसे 1 एज इट इज छोड़ दिया ताकि ये जीरो बन रहा है. 1 में से 1 को माइनस करोगे जीरो भी बन जाएगा साथ साथ और फैक्टर भी आ जाएगा. तो अगर मैं R2 माइनस R3 करूँ तो ये जीरो भी बन रहा है एंड आई एम गेटिंग फैक्टर ऑल्सो. दोनों वर्क हो रहे हैं. तभी बोला कीप फैक्टर्स इन अ माइंड एंड गेट जीरोज ऑल्सो. तो R2 एज R2 माइनस R3 एंड R3 एज R3 माइनस R1. अब इंपॉर्टेंट अगेन एक और पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान देना है, अगर मैं R2 में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ तो आई स्टार्ट विद R2 ओनली. वाई आई एम स्टार्टिंग विद R2 नॉट विद R3. अगर मैं R3 से शुरू कर रही हूँ तो R3 माइनस R2 लिख रही हूँ. इसका मतलब है मैं R2 को -1 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ. दैट मीन्स आई एम चेंजिंग डिटर्मिनेंट ओवर देयर. आई एम मल्टीप्लाइंग बाय माई सेल्फ. एक कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ स्केलर से. अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी इफ आई एम चेंजिंग डिटर्मिनेंट, यानी आई कांट डू दैट. तो इसलिए अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर -1 से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा. तो इसलिए व्हाट वी रिमेंबर इज दैट कि जिस रो या जिस कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वही फर्स्ट होने चाहिए. अगर इसमें करना है तो आई स्टार्ट विद R2, बस यही याद रखिए. R2 में करना है R2 से स्टार्ट करेंगे, C3 में करना है C3 से स्टार्ट करेंगे, R1 में करना है R1 से स्टार्ट करेंगे. दैट इज इट. सेकंड में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्केलर ऐड करेंगे. हमने लर्न की थी ना, इक्वी मल्टीपल्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम कैन बी एडेड टू द एनी अदर रो और कॉलम, इजंट इट. तो किसी भी रो के इक्वी मल्टीपल मैं इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. दैट इज पॉसिबल. तो उसमें मैं R3 को चेंज नहीं R2 को करूँ, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपने सिर्फ ये याद रखना है जिस रो में चेंज करेंगे जिस कॉलम में वही फर्स्ट आएगा, बात खत्म. और उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा. अगर मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया तो मैं डिवाइड भी करूँगी. अभी आगे देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिवाइड भी कैसे करते हैं ये देखते जाएंगे साथ साथ. ओके, नाउ दिस इज, अब कर लेते हैं अप्लाई करते हैं इसके LHS. ये पहले आप लोग LHS में क्वेश्चन लिखेंगे ये और फिर अप्लाई करेंगे. मैं साथ साथ कर रही हूँ, ठीक है. आपने पूरा लिखना है, ऐसे नहीं. पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर ये लिखेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई और फिर ये. अब क्या हो जाएगा, हमने फर्स्ट रो में कुछ चेंज किया नहीं, सेकेंड रो में चेंज किया. क्या क्या R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 इज 0, B माइनस C और यहाँ पे क्या होगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. क्लियर. अब ये R3 माइनस R1 0, 1 माइनस 1 अगेन 0, C माइनस A एंड दिस इज C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. व्हाट वी हैव इट. अब देखो कॉमन दिखेगा हमें, जो फैक्टर ध्यान में रखा वही कॉमन भी आएगा. ये B माइनस C, दिस इज B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर क्या हो जाएगा, B माइनस C इंटू B प्लस C. B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर क्या हो जाएगा, B माइनस C इंटू B प्लस C. तो ऑब्वियसली B माइनस C कॉमन हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे C माइनस C कॉमन हो जाएगा. तो लिख लेते हैं, टेकिंग B माइनस C एंड C माइनस A कॉमन. कौन से रो से कॉमन है ना, कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली. पूरा लिखेंगे आप. क्लियर विद दैट, समझ में आया. अब कॉमन ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये बाहर. दैट मीन दिस इज लाइक दिस, B माइनस C एंड C माइनस A कॉमन होके बाहर आ गए. हम प्रॉपर्टी लर्न कर चुके हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई स्केलर अगर है मल्टीपल हो रहा है दैट कैन बी टेकन थ्रू आउटसाइड द डिटर्मिनेंट. पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है वो. तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1A स्क्वायर. अब यहाँ से B माइनस C कॉमन तो ये 0, इधर से B माइनस C गया तो क्या रह जाएगा 1. यहाँ पे ये क्या है, B माइनस C इंटू B प्लस C. दिस इज B माइनस C इंटू B प्लस C. तो B माइनस C भी कॉमन तो क्या रह जाएगा, B प्लस C रह गया ना सिर्फ यहाँ पे. क्लियर. नेक्स्ट में
ये 0, अगेन c माइनस सी कॉमन तो ये 1, और ये भी क्या हो जाएगा फिर c प्लस ए, एंड वट एवर यू आर अप्लाइंग डू राइट इन यहाँ पे रीजनिंग लिखेंगे, क्या रीजनिंग है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो अगर ए और बी ऑलरेडी वहाँ है, इक्वल टू वॉट, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। डू राइट रीजनिंग ऑलवेज, ये याद रखेंगे हमेशा, यानी वट एवर स्टेप यू आर अप्लाइंग इट उसे सपोर्ट करेंगे प्रॉपर रीजनिंग के साथ। ओके चलिए अब देखते हैं क्या हुआ जब ये हमारे पास ऐसा आ गया है, जब आई गॉट 1 0 0, जब ये 1 0 0 हम लेकर आ गए तो अब इसका क्या बेनिफिट, whenever you've got 2 zeros in a single row or a column, then you can either, उसके बाद चाहें तो और सिंप्लीफाई करें, नहीं तो उसी स्टेप पर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं मतलब दैट मीन्स यू हैव नॉट अप्लाइड इनफ ऑफ द प्रॉपर्टीज, जितनी चाहिए वो आपने अप्लाई नहीं की, तो इसलिए आप एक्सपेंशन तब करेंगे जब 2 जीरोस किसी रो या कॉलम में आएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, एक और पॉइंट आएगा जब 2 जीरोस नहीं आ रही, हम डिस्कस करेंगे वो क्या, ठीक है। तो 2 जीरोस किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आ जाती हैं तब हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो अब ये आ गई, नाउ वी कैन एक्सपैंड, तो मेक दिस एंड then expand the determinant, obviously expand the determinant and then only expand the determinant, ये याद रखेंगे। These key points अगर आपको ध्यान में रहते, determinants are very easy, I'm telling you। अब यहाँ पर अगर मैं expand कर देती हूँ और जिसमें जीरो है उसी से एक्सपैंड करना इजी है ना, क्योंकि तो 2 जीरो है, खत्म हो जाएगा कैंसिल, तो इसी से एक्सपैंड करना इजी है। अगर मैं इसे एक्सपैंड करती हूँ तो यहीं पर मैं एक स्टेप में यही बता रही, तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये तो दोनों जीरोज हैं, आई विल राइट इट, ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं, चेक करते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। आंसर यही है, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस सी, ड्रैबिंग दिस ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करें, दिस इज बी माइनस सी माइनस ए, आउटसाइड इज ए कॉमन। अब एक्सपैंड कीजिए, 1 इंटू सी प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस ए, मल्टीप्लाई लाइक दिस ना, ये से और ये से सुटिया, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू सी प्लस ए माइनस दिस, तो माइनस होगा तो क्या होगा, पूरे के पूरे टर्म का जितनी भी टर्म्स हैं उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज, तो माइनस बी माइनस सी। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर लेके जाएंगे हर टर्म का साइन चेंज, और अगर मैं ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लूंगी देन ऑल्सो हर टर्म का साइन चेंज। 9th क्लास 8th 9th में पढ़ा आपने ये, तो जस्ट रिवाइजिंग यू विद यू पीपल। बी माइनस सी माइनस ए, अब ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, दिस इन दिस कैंसिल्स, क्या रह गया, बी माइनस सी माइनस ए एंड isn't that your RHS आ गया, done with it, so easy isn't it, कितने आराम से हो गया। ओके तो जब भी तभी कहती हूँ, जब 1 1 1 दे दिया, हाफ वर्क इज ऑलरेडी डन, वो आपको करके दे दिया, करके ही दे दिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, अब वो 1 1 1 आपकी चाहे रो में हो, डिटर्मिनेंट में हो, कहीं पर भी हो, हम ऑलरेडी लर्न कर चुके एक प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज, अगर मैं मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लूँ, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या रहता है, सेम। तो वंस चाहे रो में, कॉलम में, मतलब रो में देती रहूँ या कॉलम में देती रहूँ, मैं एक्सपैंड वैसे ही कर सकती हूँ। और एक और चीज़ आपने ध्यान दी, जब हम अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो मैं रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ कर सकती हूँ, मतलब एक वक्त में रो, नेक्स्ट स्टेप में कॉलम, वी कैन गो अहेड लाइक दिस। लेकिन जब ERT करते हैं, ECTL जो मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम, तब ओनली या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा या फिर कॉलम। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटर्मिनेंट में यू कैन अप्लाई बोथ रो एंड कॉलम साइमल्टेनियसली मतलब एक स्टेप रो कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में कॉलम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट्रिसेस में सिर्फ और सिर्फ रो चलेगा, ERT, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉलम चलेगा, ECT, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखेंगे, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन में। इट इज 1 1 1, कहाँ दिया आपको, ओके 1 1 1 एंड देन इट इज गिवन ABC एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये है। प्रूव करना है आपने, इक्वल टू A माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए बी, ए प्लस बी प्लस सी। बोला था ना साइकिल में मूव करते हैं, माइनस बी दिस, और यहाँ पर मतलब ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए है साइकिल में, और ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी, अगेन साइक्लिक टर्म्स, यानी ए बी और सी तीनों का सम। अगर ए बी होता इधर तो इधर बी सी और सी ए होता, डबल में चलता। ऑलवेज एक साइकिल में ही मूव करते हैं हमेशा ये। दिस व्हाट यू नीड टू प्रूव। अगेन फर्स्ट स्टेप, कीप दीज इन अ माइंड बिफोर अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, यानी मुझे ए माइनस बी माइनस ऐसे चाहिए, तो यानी आइदर मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगी रो में तो ये तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड 1 1 1 दे रखे हैं, हाफ वर्क डन। और ये जब ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगी कॉलम वाइज, फैक्टर भी मिलेगा और जीरो भी मिलेंगे। I'll get factor also, I'll get zeros also. My both the work is done. तो यानी क्या करें, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, अगेन वही करते हैं C2H। अगेन प्लीज आप लोग ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन, यानी कि सीधा स्टार्ट करो LHS इक्वल टू यही मैट्रिक्स आएगी वापस 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अप्लाई करेंगे प्लीज C2 as C2 minus C3 and C3 as C3 minus C1, अगेन C2 C2 C3 C3, स्टार्ट वहीं से करते हैं। अब फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो ये एज इट इज। सेकेंड कॉलम सब्ट्रैक्ट किया हमने, सेकेंड माइनस थर्ड, दिस इज जीरो, दिस इज बी माइनस सी, और ये यहाँ पे ये आपके पास आई थिंक सो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब गिवन थे क्वेश्चन में, ये स्क्वायर नहीं क्यूब में है, ये क्यूब 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 करेक्ट कर लेंगे प्लीज। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये है, तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब, जीरो सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब, दिस माइनस दिस है ना C3 माइनस C1, तो ये से आएगा ना। क्लियर हुआ भी है। अगेन कॉमन कहाँ दिख रहा है, कॉमन यहाँ पर एंड यहाँ पर, ये तो बी माइनस सी, ठीक है, बी क्यू माइनस सी क्यूब में से बी माइनस सी कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूला कौन सा है, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये अप्लाइंग व्हाट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, किस किस को याद है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 11th क्लास स्टूडेंट्स जो मेरे साथ थे जल्दी बताइए क्या क्या था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वॉज, इट वॉज एक्स माइनस वाई देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, परफेक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अगर हम अप्लाई कर रहे हैं। और अब आप लिख लेंगे ना प्लीज, टेकिंग बी माइनस सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, कौन से हैं ये कॉमन, कहाँ से ले रहे हैं हम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। आई एम रबिंग दिस पार्ट, ठीक है, ये भी रब कर देते हैं। फिर मैट्रिक्स लिख रहे हैं जो थी हमारी, अब यहाँ पे आप लिख लेंगे प्लीज, टेकिंग कॉमन, कॉमन ले लेते हैं हम, बाहर लिखते हैं बी माइनस सी सी माइनस ए, हुआ क्या रह गया हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड कॉलम से कॉमन लिया हमने, ये तो जीरो, यहाँ से बी माइनस सी गया तो 1, व्हाट इज बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी माइनस सी इंटू दिस, तो बी माइनस सी तो कॉमन हो गया, तो क्या रह गया इंटू में, जो लेफ्ट है वो क्या ये नहीं है, क्या लिख लिया था, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, लास्ट में से भी जीरो, सी माइनस से तो बाहर तो 1 हो गया, और सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, यस करेक्ट है ना, क्लियर, ओके। अब आगे, अब 1 0 0 तो दिख रहा है, दैट इज करेक्ट, 2 फैक्टर भी आ गए, टोटल कितने फैक्टर थे 4, हमारे पास 2 आए हैं, अभी 2 और रहते हैं, तो मैंने क्या बोलता 1 0 0 के बाद हम एक्सपैंड कर सकते हैं आराम से, आई कैन डू एंड आई कैन स्टिल गेट द आंसर। लेकिन अगर ये ऑलरेडी 0 0 है, मैं इनको भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ फिर से, ये मेरी जीरोस चेंज नहीं होंगी, बट ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जब बाहर 2 कॉमन फैक्टर भी रहते हैं, सिर्फ 2 आए हैं, आई मे इवन गेट 1 मोर कॉमन एंड देन विल बिकम ईजी ओपन करने के लिए। तो जब ऐसा होता है एक बार और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, याद रखें मेरे पॉइंट, जब 2 अभी रहते हैं, टोटल 4 फैक्टर्स चाहिए हमें, 2 आ गए, एक ही रहता तो एक्सपैंड कर दीजिए, जैसे पहले वाले में किया था, 3 फैक्टर थे, 2 निकाल लिए, एक ही रहता था एक्सपैंड कर दिया, डन। लेकिन अगर 4 फैक्टर्स हैं, 2 आपके बाहर आ गए, तो आप एक बार और सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट इवन 1 मोर कॉमन, ओनली 1 एक्सपेंशन में अपने आप ही आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट, ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान में देनी होती हैं।
तो क्या करें, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो C2 एज C2 माइनस C3, सिर्फ इसी को। तो बाहर तो ऑलरेडी जो चल रहा है आपके पास, और क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड कॉलम माइनस दिस, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 0। नेक्स्ट, अब इसमें से इसे माइनस कीजिए, सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, साइन चेंज, यानी मैं यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, ये हुआ। एंड लास्ट वाला क्या चल रहा है, 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट योर डिटरमिनेंट इज। ये तो की पॉइंट्स अलग से, की पॉइंट्स अलग से, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब ये पार्ट को रब कर देते हैं और हमारा आंसर आने वाला है बस। अब यहाँ चेक कीजिए, जो आपने सब्ट्रैक्ट किया, एक तो और 0 हो गया, और इजी हो गया, सब्ट्रैक्ट किया था आपने, क्या ये सी स्क्वायर और ये क्या हुआ कैंसिल, क्या क्या रह गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, दिस इज लेफ्ट। जो अब जो लाइक टर्म्स कैसे, यानी ये सिंगल वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक है बट दो डिफरेंट वेरिएबल्स, एक बी और एक सी, ए और सी, टर्म की डिग्री 2 है, इधर भी मैं बात करूंगी सेम है, लेकिन ये लाइक है और ये लाइक है, तो इन्हीं को क्लब करूंगी। क्लब का मतलब है एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ ऐड ही हो रही है, टर्म्स है अलग अलग, तो यानी ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, सी माइनस सी, और यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, कोई चेंज नहीं, हम कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई करें, सिर्फ उसे ढंग से लिखने वाले, रीअरेंज कर रहे हैं, a 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ए क्यूब। अब इसी कैसे लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, प्लस बी सी है और माइनस ए सी है, ये लिखा। इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं, 0 1, और यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, दिस व्हाट यू हैव इट। मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट है, कंफ्यूज नहीं हो। अब यहाँ पर जो लाइक है, ये टर्म्स, इनको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ, प्लस हो रही हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, हम सिर्फ कॉमन चेक करेंगे, इसमें क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन, बी माइनस, मतलब इसको फैक्टराइज करूँगी तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटू बी प्लस से, यहाँ पर सी कॉमन, इजंट इट। सिर्फ ये पार्ट मैं बता रही हूँ, इसको एक्सपैंड करके बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, क्योंकि हम पूरी की पूरी डिटरमिनेंट दोबारा लिखें, सिर्फ ये पार्ट बता रही हूँ क्या हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, आपने पूरा डिटरमिनेंट लिखना है प्लीज, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग दिस पार्ट। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी सी माइनस ए सी में से क्या कॉमन है, प्लस सी कॉमन, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, बी माइनस ए। नो लुक एट दीज टू फैक्टर्स, एक टर्म में प्लस ये भी फैक्टर्स है, सी इंटू बी माइनस ए क्या, अब इसमें से बी माइनस ए कॉमन, याद है क्वाड्रेटिक में जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते तो ऐसे ही करते थे ना। अब दोबारा देखो, बी माइनस ए तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन, दोनों टर्म में आ रहा है, तो अगर मैं बी माइनस ए को बाहर रखूंगी तो क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, बी माइनस ए गॉन, इधर क्या रह गया, बी प्लस ए, और प्लस बीच में, और क्या रह गया, सी, दिस इज व्हाट, यानी ये पार्ट क्या है, सिर्फ ये, दिस पार्ट बिकम्स दिस, दैट मीन्स मैं डिटरमिनेंट को इधर चेंज करती हूँ, यहाँ लिखते हैं हम, यानी दिस बिकम्स बी माइनस सी, सी माइनस ए, और क्या क्या था, 1 0 0, और यहाँ पर ए क्यूब, ये भी 0 हो गया था, और ये क्या मिला मुझे अब, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए प्लस सी, ये टर्म क्या बन गई, ये क्लियर, आप ये दिखाएंगे पूरा का पूरा लिख के, एंड ये यहाँ पर 1 है, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, क्लोजेस है। अब सीधा, अब ऑलरेडी 1 0 0 आ गया, और अगर ध्यान से देखेंगे जो दो हमारे फैक्टर्स हैं वो यही दो मिसिंग थे, ओनली यही फैक्टर्स मिसिंग है हमारे पास, तो क्या करें, अब जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरोज हैं उसी से क्या करते हैं, एक्सपैंड सीधे, तो यानी आई कैन एक्सपैंड थ्रू दिस। और आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, मैम इस कॉलम में ये 0 0 और ये है, तो आई कैन टेक दिस ऑल्सो कॉमन, बिल्कुल, मैं क्योंकि अगर ये पूरा, जब ये दोनों 0 हैं, जब भी 0 से कुछ कॉमन लो, यानी हम डिवाइडिंग 0 बाय दैट नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज 0, तो आई कैन टेक दैट कॉमन कंप्लीटली, समझ में ना, अगर ये कॉमन लूंगी तो ये 0 ही रहेगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0। सपोज मैं बोलो 6 में से 3 को कॉमन लो, तो क्या मीनिंग होता है, 6 डिवाइड बाई 3 2 विल बी लेफ्ट,
इफ आई एम टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम 6 इट मीन्स 6/3, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगी 2. तो इफ आई एम टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम 0, आई से 0 था, आई वांट टू टेक 3 कॉमन, तो 0/3, तो क्या रह जाएगा 0. तो 0 में से कुछ भी कॉमन लेना, यानी स्टिल लेफ्ट विल बी ऑल्सो 0 ओनली. तो इसमें से अगर मैं बोलूँ C2 में से टेक B माइनस से A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C2 बाहर, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी B माइनस C माइनस C, और क्या रह गया यहाँ पे, दिस इज 1, ये 0. आप अगेन मैं पहले कॉलम वाइज लिखूँ, कॉलम से कॉमन ले, कॉलम वाइज ही लिख देते हैं 1 A क्यू, यहाँ से कॉमन तो ये 0 0, और ये क्या रह गया सिर्फ 1, वो तो बाहर गया ना पूरा, और ये 0 1 C² प्लस AC प्लस A², और कॉमन लिया, कॉमन यहाँ लिखना भी तो है हमने, क्या आएगा B माइनस से A प्लस B प्लस C, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, दिस ऑल इज गोइंग इन अ प्रोडक्ट, ये सब मल्टीप्लीकेशन है. ओके, अब आप बोलेंगे मैम जो क्वेश्चन था उसमें B माइनस C माइनस C और A माइनस B था, A प्लस B प्लस C तो करेक्ट है, पर हमारा तो B माइनस C आ रहा है. अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन करेक्ट चल रही है तो दैट माइनस साइन विल ऑटोमेटिकली कम एंड विल बी टेकन केयर, यू डोंट हैव टू बॉदर फॉर दैट. आपने अब क्या करना है, बस एक्सपैंड करना है और अपने माइनस का साइन आ जाएगा. तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, किसमें ज़्यादा जीरोज हैं, मैं रो ले लूँ या ये कॉलम ले लूँ, तो R1 बेटर है ना, तो लिखेंगे आप एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, ऑलवेज लिखना है ये अलॉन्ग R1, तो क्या हो जाएगा बाहर, तो एज इट इज B माइनस C माइनस A B माइनस A प्लस B प्लस C एंड एक्सपैंड कर देते हैं. अब क्या 1, दिस फर्स्ट ये होगा 1 इंटू एनीथिंग, तो 1 ही है, 1 लिख रहे हैं, चलो 0 इंटू एनीथिंग, ये पार्ट तो 0 हो गया, 0 माइनस, अब ये क्या है आ गया ना -1, और प्लस ये 0, अब 0 इंटू कुछ भी आएगा, 0 इंटू एनीथिंग प्लस 0 इंटू एनीथिंग, वो तो 0 ही होता है. तो अभी तो मैं लिख रही हूँ, तो वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तब भी हम 1 0 0 लेते हैं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, वो पार्ट ही खत्म हो जाता है पूरा का पूरा हमारे लिए. अब क्या रह गया, दिस इज, अब ये -1, तो माइनस का बाहर, जस्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना उसे से करेंगे, तो यानी इसका साइन चेंज. सब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं होता, ध्यान से बताएंगे मुझे अगर कहीं सोच रहे हो ऐसे कि सबसे क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई. सपोज आपने लिखा है 3 इंटू 4 और ब्रैकेट में इंटू 2, तो क्या करेंगे 3 इंटू 2 4 इंटू 2 पूरा लिखते हो क्या वहाँ पे, दिस मीन्स वॉट 3 इंटू 4 इंटू 2, ये मीनिंग होता है ना. यानी आप चाहे इससे लिख सकते हो, इवन दिस इज आइदर दिस, और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 8 लिख दो, एक ही बात है, या फिर 2 को इधर कर दो, 6 इंटू 4 लिख दो. आप कहीं पर भी 6 इंटू 8 नहीं लिखते कि इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई. मल्टीप्लिकेशन यानी वो पूरी लॉन्ग चल रही किसी एक ही से मल्टीप्लाई करने की बात होती है, ये नहीं कि सब टर्म से. एडिशन थोड़ा हो रही है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे वहाँ पर, तो इसीलिए ये सिर्फ सिंगल एज इट इज टर्म है विक. तो यानी ये क्या हुआ -1, तो -1 इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा A प्लस A माइनस B, तो यानी दिस इज A माइनस B से पहले लिख देते हैं हम, फिर B माइनस C, फिर C माइनस A, फिर A प्लस B प्लस C, एंड दैट इज योर RHS. डन, हो गया, कितना ईजी है, समझ में आया अच्छे से, क्लियर. चलिए फटाफट अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन. यानी आपने सबसे पहला की पॉइंट क्या था, प्रॉपर्टी अप्लाई करते वक्त हमेशा ध्यान में रखें फैक्टर्स क्या चाहिए. सेकेंड, ट्राई टू गेट 1 1 1 एंड 1 1, अगर गिवन है तो डन, नहीं गिवन तो ट्राई टू गेट 1 1 1 एंड आफ्टर गेटिंग 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करो, गेट 1 0 0 और एनी 2 zeros इन अ सिंगल रो. अब मैं इसके आगे की पॉइंट बता रही हूँ, अभी वो यूज़ नहीं हो रहा फिर भी क्वेश्चन में, फिर भी हम टेलिंग यू, अगर बाई चांस आई एम अनेबल टू गेट 2 zeros इन एनी सिंगल रो और कॉलम, अगर मुझे किसी भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में 2 0 नहीं मिल रहा, सिंगल रो और सिंगल कॉलम में 2 0 नहीं मिल रहे, देन इसी का बी पॉइंट ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, गेट 3 zeros anywhere in a determinant and then expand. आगे वही है, and लिख लेंगे, then बहुत नीचे हो जाता है लिखना, प्रॉब्लम, then expand
क्या गेट एनीवेयर, कहीं पर भी मैं ऊपर ही लिख देती हूँ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में बी पॉइंट इज गेट 3। अभी वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, तो मैं सिर्फ की पॉइंट्स खत्म कर रही हूँ ना कि की पॉइंट आ जाए। जब क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगी कहाँ पर आते हैं। गेट 3 zeros, अभी सिर्फ एनीवेयर बता रही हूँ, कैसे आएगा एनीवेयर ये भी मालूम चलेगी। एनीवेयर इन डिटरमिनेंट एंड देन expand and then expand, तो यहाँ पे भी लिखा ही हमने get 3 zeros anywhere in determinant and then expand these two again। ये तीनों के तीनों बस यही ध्यान में रहो, डिटरमिनेंट, दैट इज इट, सिंपल सी बात है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपके पास? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। आई हैव अ हैबिट, जेड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, एंड क्या है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स साथ में। ओके, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, अगेन सेम साइकिल में चल रहा है, एंड लास्ट एक और ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड। बताओ एक्स वाई है वाई जेड है तो आगे क्या होगा? जेड एक्स है ना, साइकिल में मूव करता है ऑलवेज। क्लियर हो गया ये पार्ट? ओके, अब ये चाहिए कीपिंग दीज इन अ माइंड, यानी सब ट्रैक करेंगे आ जाएगा। लेकिन क्या उससे पहले 1 1 1 गिवन नहीं है तो कैन आई गेट 1 1 1? इसे तो ध्यान में रखेंगे अप्लाई करने से पहले, बट कैन वी गेट 1 1 1 पहले? तो ध्यान से देखो 1 1 1 आ सकता है कहीं पर, ऐसा ध्यान से देखेंगे। अब अगर ध्यान से सुनेंगे तो लास्ट कॉलम पे इफ आई कंसंट्रेट, ये क्या है? सिर्फ वाई जेड। अगर इस पूरी रो को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। इस रो को वाई से कर दूंगी तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये क्या हो जाएगा? एक्स है, वाई मल्टीप्लाई कर दे जेड, अगेन एक्स वाई जेड। इस रो को जेड से करेंगे तो ये जेड स्क्वायर, ये जेड क्यूब, ये एक्स वाई और जेड, तो तीनों एक्स वाई जेड हो जाएंगे। अगर तीनों एक्स वाई जेड तो आई कैन टेक दैट कॉमन, और क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कॉमन लिया तो पूरा का पूरा कॉलम क्या बन जाएगा? 1 1 1 एंड वर्क इज डन, इजंट इट? तो अब क्या करेंगे? हम लिखते हैं यहाँ पे अगेन, प्लीज़ आप लोग सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन पहले लिखेंगे। एलएचएस क्या है? एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये क्वेश्चन है। और अब आपने अब देखते जाएंगे, मैंने होता ना जब हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मैं रो को ही चेंज करी तो क्या होगा? R1 को मैंने लिखा एक्स R1, ठीक है, R2 को लिखा वाई R2 एंड R3 को लिखा जेड R3। जब मैं किसी रो को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी भी इक्वेशन के अंदर, मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में मैं किसी टर्म को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करूँगी तो डिवाइड भी साइड बाय साइड करूँगी, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज द टर्म बाय माई सेल्फ इन एन इक्वेशन। हम कभी भी बदल नहीं सकते टर्म को इक्वेशन में। तो अगर बदल नहीं सकते तो अगर मैंने रो को मल्टीप्लाई किया, यानी एक स्केलर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ रो से, तो उसका मतलब क्या है? एक्चुअली मैं डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो अगर मैं डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करूँ तो डिटरमिनेंट को क्या करूँगी? डिवाइड भी करूँगी। रो को मल्टीप्लाई किया यानी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट डिवाइड भी तो होगा, बिकॉज वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 क्या होने चाहिए? डिवाइड। तो क्वेश्चन में ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी 1/xyz आएगा बाहर, क्योंकि डिटरमिनेंट इन तीनों से डिवाइड भी होगा सो दैट इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। तो यानी अब अंदर क्या हो जाएगा? इसको x से मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। नेक्स्ट y से किया तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब अगेन एक्स वाई जेड। लास्ट क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर जेड क्यूब और अगेन एक्स वाई जेड। अब क्या दिख रहा है? एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3 पूरा का पूरा बाहर, तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, पूरा स्टेप्स ऐसे लिखने हैं आपने, कॉमन फ्रॉम, बिकॉज ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए मेंशन करनी। जैसे ये बाहर आया तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिवाइड, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो हमारा डिटरमिनेंट में एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड जो हमने किया दैट इज टेकन केयर वेरी वेल, और हमारे पास 1 1 1 भी आ गए। तो यानी एक्स वाई जेड बाहर आया, नीचे भी एक्स वाई जेड आया,
और डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, ये हुआ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये क्या रह जाएगा सिर्फ 1, यहाँ पे नीचे वाई स्क्वायर वाई क्यूब और अगेन ये भी हुआ 1, ये क्या होगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और ये भी क्या होगा 1 और ये दोनों आंसर। अब आई कैन सी वंस, जब 1 दिख रहे हैं मुझे तो क्या करूं, 0 बना दूं और जैसे ही इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी अपना फैक्टर भी बनेंगे। अगर मैं फर्स्ट रो को चेंज नहीं कर रही, सेकेंड रो माइनस थर्ड रो करूंगी, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, पता है वाई माइनस जेड आ गया, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब अभी इससे पहले वाले इस क्वेश्चन में लिखवाया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला वो ये अप्लाई होगा। सिमिलरली यानी आई कैन अप्लाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या अप्लाई कर रहे हो, इसके बाद आपने इसके बाद अप्लाई करना है, जो अप्लाई करना है वो यहाँ लिख रही हूँ, मतलब वो इसके नीचे आएगा, आई एम राइटिंग इट है। क्या क्या अप्लाई करना है, आपने अप्लाई करना है R2 माइनस R3 एंड R3 एज R3 माइनस R1। और क्या बताया था, जब दो फैक्टर निकलेंगे कॉमन, यहाँ पे ये नहीं ये दो निकलेंगे कॉमन हमारे पास, पहले जब ये दो कॉमन निकलेंगे 2 जीरोस आ भी जाएंगी यहाँ पर 2 जीरोस। अगर दो फैक्टर रिमेनिंग रहते हैं, एक ये और एक ये, दो फैक्टर रिमेनिंग रहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जीरो वाले कोई जीरो माइनस जीरो वाली रोज या कॉलम्स जो में जिसमें भी, इस केस में रो आ रही है तो रो माइनस रो कर देंगे फिर से, ताकि जीरो डिस्टर्ब नहीं हो बट और सिंप्लीफाइड हो जाए हमारी टर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म मस्ट गेट मोर सिंप्लीफाइड और फैक्टर फिर से कुछ ना कुछ कॉमन लगा। लास्ट केस में तो दोनों ही कॉमन आ गए थे आपके पास। में जस्ट सी इधर क्या होता है एंड डू नॉट बॉदर अबाउट अ माइनस साइन। आप बस सिंप्लीफिकेशन करते वक्त ध्यान से अपने साइन लिखेंगे। अल्टीमेटली अगर नेगेटिव आना होगा दैट विल कम, फैक्टर्स जिस फॉर्म में आने होंगे वो वैसे ही आएंगे, यू डोंट बॉदर। अगर ये फैक्टर्स सब करेक्ट है तो आपके फैक्टर्स यही आएंगे आंसर में। तो इसलिए अगर माइनस पहले नहीं आया, आपने उल्टा माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाद में अपने आप नेगेटिव का साइन आएगा और फैक्टर चेंज हो जाएगा आपके पास। यू डोंट हैव टू बॉदर फॉर दैट। सो हाई ये कंटिन्यू हो जाएगा ना आगे, एग्जैक्टली सेम ही तो है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, लिख के बताया भी करो ना, और क्या, ठीक है। ओके, तो दिस इज डन। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 के दोनों पार्ट्स एकदम एक ही जैसे हैं, लाइक क्वेश्चन दैव गिवन एंड अगेन इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर में आता है इतना इजी क्वेश्चन, क्या कहें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है आपके पास, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, दिस इज व्हाट यू हैव इट। प्रूव क्या करना है आपको, इसे प्रूव करना है 5x प्लस 4 इंटू वॉट 4 माइनस 6, ये प्रूव करना। अगेन अप्लाइंग, बिफोर अप्लाइंग कीप फैक्टर्स इन अ माइंड, फैक्टर ये दोनों में से चाहिए। और ये कैसी मैट्रिक्स दिख रही है, जरा ध्यान से देखेंगे, x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4, यहाँ पे ये खैर इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, चाहे वो आपस सारे इक्वल है, लेकिन ऐसे आई कैन से देर इक्वल देर इक्वल देर इक्वल। कौन सी, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में बोलोगे तो कौन सी मैट्रिक्स सही है, कौन सी लिखेंगे। ओके, LHS से स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये एज इट इज x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 2x 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 and x plus 4। A good mathematics always energizes you। अगर आप enjoy करो तो आप energize होते चले जाते हैं साथ साथ ही। ओके, अब क्या करें, ये फैक्टर चाहिए दिस और दिस, कोई एक पे कंसंट्रेट करो लेकर आने के लिए। लुक एट रोज इन कॉलम्स। जब भी, अब अगेन मैं एक और पॉइंट बता रही हूँ, इस टाइप की मैट्रिक्स जहाँ आपके पास ऐसे चल रहा होता है, दिस इज द वे गोइंग ऑन, और सिमेट्रिकली गिवन हो, नाम भी बताई जा रही हूँ, तो गिवन होती हैं अगर, तो देन वहाँ पे 1 1 1 नहीं आ रहा होता, तभी फैक्टर्स भी ध्यान में रखने, तो फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास। कई बार 1 1 1 बड़े आसानी से, मतलब 1 1 1 बन जाएगा अभी भी, बट पहले उससे पहले चलो आई जस्ट से रादर इन सिंपल वे कि फैक्टर को ध्यान में रखो, अपना 1 1 आ ही जाना है फिर भी हमारे पास। तो कहाँ दिख रहा है हमें, दिख रहा है कोई फैक्टर। अगर मैं इससे चाहे कॉलम्स या चाहे रोज, इफ आई ऐड ऑल द रोज और ऑल द कॉलम्स, ऐसे वाली मैट्रिक्स में सीधा ये हो जाता है, आइदर ऐड ऑल द कॉलम्स और ऐड ऑल द रोज, तो वर्क इज डन। क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में
फर्स्ट कॉलम ये सब ऐड, x में 2x प्लस 2x, तो कितना हो गया 5x और प्लस 4 एज इट इज। फिर नीचे 2x प्लस x, तो अगेन 5x एंड प्लस 4 एज इट इज, खत्म। इसमें भी सेम, सी फैक्टर भी आ रहा है और वो कॉमन भी आ रहा है, तो फैक्टर भी आ गया और फैक्टर भी आ गया और 1 1 भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई, फैक्टर भी 1 1 भी। तो ये क्या है 2x, इधर क्या है x प्लस 4, इधर भी क्या है 2x, यहाँ पे 2x एंड x प्लस 4। अब क्या स्टेप होगा, कौन बता रहा है मुझे क्या स्टेप होगा? टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1, 5x प्लस 4 लिखेंगे पूरा, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1, ये लिखना है आपने। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं हम, ये सब रब कर देते हैं। आपने स्टेप्स लिखने हैं कॉमन एंड देन व्हाट यू गेट इट एज, वो कॉमन, तो ये बाहर आ गया 5x प्लस 4 और उसके बाद क्या रहेगा 1 1 1 कॉलम। नेक्स्ट वाला क्या है 2x x प्लस 4, 2x मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रही हूँ, 2x x प्लस 4। अब क्या करें, अब तो 1 1 को 0 बनाना है, यही तो काम है हमारा। इसके बाद 1 1 के बाद मेक देम एज 1 0 0, तो 1 यहाँ इन दोनों को 0 बनाते हैं, तो क्या लिखें, यानी इन दोनों को 0 बनाने के लिए रो, अब बोलते ना कॉलम। अब नेक्स्ट में देखो रो अप्लाई कर रही हूँ मैं, आई एम राइटिंग इट एज R2 माइनस R3 एंड R3 एज R3 माइनस R1। पहले कॉलम तो अब रो, इट इज़ पॉसिबल, डिटरमिनेंट में हम ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज, ये तो कॉमन है एज इट इज़। अब फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 2x। सेकेंड रो दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 क्या देगा मुझे 0, ये माइनस है x प्लस 4 माइनस 2x, x प्लस 4 माइनस 2x, तो x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 6 और ये प्लस 4 रहा एज इट इज। 2x माइनस दिस, जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज, तो यानी x भी सब्ट्रैक्ट हुआ 2x में से और प्लस 4 की जगह माइनस 4 हो गया। अब R3 इज R3 माइनस R1 भी किया, तो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x, वाओ 1 मोर 0, गुड ना, एक और 0 भी आ गया। दिस माइनस x प्लस 4 माइनस 2x, तो x में से 2x क्या माइनस 6 और प्लस 4 रह जाएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखोगे तो एक और फैक्टर समझ में आ रहा है हमारे पास, कॉमन है। क्या फैक्टर था एक और हमारा 4 माइनस 6, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस 6, तो यहाँ पे भी ध्यान दो, ये x माइनस 4, ये 4 माइनस 6, ये 4 माइनस 6 है, ये x माइनस 4 है। अगर मैं 4 माइनस 6 वहाँ पे आई थिंक सो आपके RX में प्रूव करना था, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्रूव करना है आपने वहाँ पर, तो वो प्रूविंग में लिख लेंगे। क्वेश्चन में 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ दिख रहा है स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो ये 4 माइनस 6 और ये x माइनस 4 एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, ये दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो अगर मैं कॉमन लूँगी तो क्या रह जाएगा माइनस। सपोज एक टर्म 15 है, एक माइनस 15 है, फिर टेक 15 कॉमन, इधर फैक्टर में 1 रहेगा, इधर क्या रह जाएगा माइनस 1, क्योंकि 15 कॉमन था। तो सेम यहाँ पर टेकिंग कहाँ से है 4 माइनस x कॉमन, किस में से, फ्रॉम R2 एंड R3, R2 और R3 से कॉमन, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 और इनमें से कॉमन तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, दो जगह से कॉमन तो होल स्क्वायर। अब अगेन फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, तो एज इट इज़ 1 2x। सेकेंड रो से कॉमन लिया था, 0 में से तो कुछ भी कॉमन, तो 0 ही रहेगा। 4 माइनस 6, तो ये 1 रहा। ये उल्टा है, 4 नेगेटिव x पॉजिटिव, तो क्या रह जाएगा माइनस 1 और ये 0, ये भी 0 और ये 4 माइनस 6 है, तो क्या रहा 1। हमारे फैक्टर्स पूरे आ ही गए। अगर हमें जो चाहिए वो ऑलरेडी बाहर आ गया एज अ फैक्टर, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट को अगर अब आप एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1, दैट इज़ व्हाट। तो अब एक्सपैंड कीजिए, क्या मिल रहा है, ये दिख रहा है। एक्सपैंडिंग अलोंग किससे करें, C1 से, सीधा लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस 0, 0 इंटू 0 ना खत्म, और ये दोनों तो 0 है, इसके बाद तो जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5x प्लस 4, दिस इज x and 4 minus x का whole square, that is your RHS and hence proved. Done. हो गया? Okay, coming to the next one, question number, इसी का next part same है, B part खुद कर पाएंगे आराम से।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे करने में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है आपके पास? a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, दिस इज 2a 2a, आई थिंक सो यही गिवन है ना। या अब यहाँ जाते हैं 2b b माइनस सी माइनस, अगेन साइकिल में चलता है, हम बिना देखे भी लिख सकते हैं। देखो a पॉजिटिव b और c नेगेटिव, और दोनों फर्स्ट रो में a ही चल रहा है, 2a 2a, तो यानी अब ये ऐसे चल रहा है, ये 1 1 है, ये 2 2 और यहाँ 3 3, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, ये a से था, ये b से था, तो ये c से होगा, c माइनस a माइनस b, मतलब ऑलवेज साइकिल में मूव करेगा। a माइनस b माइनस c, a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, c पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। फर्स्ट रो a से गवर्न होनी, सेकंड b से, थर्ड c से, सिंपल सी बात है। तो ये a 2a 2a, ये 2b 2b, तो यहाँ पे क्या आएगा 2c 2c, डन, सेट, खत्म हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट इससे रब करें, यहाँ पे लाइन दिखे नहीं। अब ये जो प्रूव करना है ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी सेम फैक्टर 3 टाइम्स चाहिए, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब में, ये प्रूव करना है हम। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? हम a प्लस बी प्लस सी लेकर आते हैं, कीपिंग फैक्टर इन अ माइंड गेट 1 1 1, कीपिंग फैक्टर इन अ माइंड गेट 1 1 1, दैट इज व्हाट द की पॉइंट इज। ध्यान से देखो, कहाँ a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है आपको? रोज को ऐड करने से या कॉलम्स को ऐड करने से, आपको हमेशा ढूंढना है सिर्फ, वेदर शुड आई ऐड रोज और शुड आई ऐड कॉलम्स। हम ऐसे मूव करते हैं तो रो, ऐसे मूव करते हैं तो कॉलम। व्हाट शुड आई ऐड? a में 2a 2a तो 5a हो जाएगा, लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन से कोई बेनिफिट नहीं, ऐसे करें। a तो a ही है, 2b और b प्लस b, 2c और माइनस c प्लस c, ये 2b माइनस b प्लस b, 2c माइनस c प्लस c, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, तो बेटर है ना, आ जाएगा हमारे पास। तो यानी क्या लिखें? C1 एज, अब प्लीज़ क्वेश्चन वहीं से शुरू करेंगे जैसे समझाया है, मैं सीधा सोल्यूशन और अप्लाई कर रही हूँ। C1 एज C1 प्लस C2 प्लस हम C1 नहीं ऐड करें, किसको ऐड कर रहे हैं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐड करें, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये क्या है? R1 एज R1 प्लस R2 प्लस, एडिंग लाइक दिस, तो रो, तो यानी क्या हो जाएगा? सीधा अप्लाई कर देते हैं इसमें। अब फर्स्ट रो को ही चेंज करें तो इसमें ये सब ऐड हो जाएगा, तो 2b इसमें ऐड हुआ तो b, 2c ऐड हुआ तो c, तो क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी। सेम यहाँ पे b पॉजिटिव है, c और a नेगेटिव, 2a और 2c ऐड करेंगे तो वो भी क्या देंगे? c और a को पॉजिटिव, यानी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे c पॉजिटिव, a और b नेगेटिव, तो दोनों 2a और 2b ऐड होंगे तो अगेन a प्लस बी प्लस सी, आगे ना फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी, बाकी दिस इज 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, खत्म। आप टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, एंड आई कैन बेट दैट ये आपको की पॉइंट्स अगर ऐसे हमेशा याद रहे ना, कोई आपको ढंग से बताए तो आप कभी भूल नहीं सकते, एंड प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी ईजी, तो इसलिए बोला कीप दिस इन द माइंड एंड खत्म। अब अगेन सी बोला ना, जब 1 1 1 आ गया, हाफ वर्क इज डन देयर इटसेल्फ, उसके बाद तो रहता ही कुछ नहीं है। अब ये कॉमन बाहर एक फैक्टर आ गया हमारे लिए, मैं सीधा लिख रही हूँ, कुछ कॉमन लिख नहीं रही है, मतलब आई एम नॉट राइटिंग एनी स्टेटमेंट, आप लिखेंगे, आपके लिए एक ही क्वेश्चन है एग्जाम में, तो उसे प्रॉपरली लिख के देना है आपने। तो ये 1 1 1, इधर 2b b माइनस c माइनस a, अगेन 2b, दिस इज 2c 2c c माइनस a माइनस b। आप क्या करेंगे? मेक दिस 1 1 1 एज 1 0 0, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा? अब ऐसे पहले हमने रोज ऐड किया, अब हम कॉलम में जा रहे हैं, क्या लिखें? C2 है C2 माइनस C3, C3 है C3 माइनस C1। अब मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, आप बताएंगे आगे मुझे। जब हम लिखेंगे C2 है C2 माइनस C3, C3 है C3 माइनस C1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दूँ क्या? मुश्किल लगेगा? चलो आई विल डू इट, डोंट थिंक दैट मैम बीच में छोड़ रही है, मैं करा ही देती हूँ, बट आपको मालूम होना चाहिए, फास्ट फास्ट करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांटेड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे C2 को चेंज किया C2 माइनस C3 एंड C3 को चेंज किया C3 माइनस C1। चलो साथ साथ करें, देखते हैं मैम से पहले कौन कौन खत्म करता है। डू इट फास्ट, ओके, लेट अस सी दैट। a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी बाहर है, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं किया हमने, वो एज इट इज है। सेकेंड कॉलम माइनस, थर्ड कॉलम तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, b में से 2b जाएगा तो माइनस b, और दोनों तो ऑलरेडी नेगेटिव थे। दिस माइनस दिस करूंगी तो 2 में से ये माइनस, तो इस सारा का साइन चेंज, जब भी जो सब्ट्रैक्ट होता है उसका साइन चेंज, पूरा साइन चेंज, c प्लस a प्लस b रह जाएगा, करेंगे चेक करेंगे। लास्ट कॉलम में भी क्या,
C3 माइनस C1 किया तो दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 0 एंड 2b माइनस 2b, ग्रेट, एक और 0 एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो अगेन पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखोगे सेम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, 2 फैक्टर और कॉमन आ गए, एक तो ऑलरेडी बाहर था। तो अगर ये प्लस बी प्लस सी कॉमन तो क्या रह जाएगा, सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन खुद करेंगे, सिर्फ बता रही हूँ। C2 को क्या लिख रहे हैं हमसे कॉमन लेने के लिए तो है, तो a प्लस बी प्लस सी आप लिखेंगे, प्लीज मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, राइट इट, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2 एंड a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3 और टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, ओके बोथ। तो यानी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये बाहर क्या रह गया यहाँ पे 1 0 0, हमने तो यहाँ से कॉमन ही लिया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज है, कोई चेंज नहीं, इसमें से कॉमन, अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन, मैंने पॉजिटिव कॉमन लिया, तीनों टर्म नेगेटिव, तो क्या रह गया -1, ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव +1, ये 0, अगेन ये क्या रह गया -1, क्यूब ऑलरेडी जो चाहिए था आ गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1, और चेक करो, एक्सपैंड करो और चेक करो क्या मिल रहा है, इट इज कमिंग एज 1 एंड हेंस इट्स प्रूव। जस्ट सी 4 मार्क के क्वेश्चन एंड आई कैन जस्ट से दैट 4 प्रॉपर्टीज ढंग से नहीं लग रही होती और इवन 4-5 स्टेप्स भी नहीं आ रहे होते ढंग से, बस आपको ये की पॉइंट्स यहाँ पर प्रिंट कर लेने हैं एंड क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। कीपिंग दिस इन द माइंड, फैक्टर्स क्या चाहिए एंड कीपिंग देम, गेट 1 1 मेक 1 1 मैंने 0 0, अभी तक तो हमने ये अप्लाई किया, ये नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे, पर पॉइंट आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। इसी का बी पार्ट भी है, वो आप खुद ट्राई करेंगे एंड विल फिनिश इट ओवर हेयर राइट नाउ, ओके, सो बाय बाय।